So, hi guys, how are you? I hope you all are doing great. So, today we will be talking about a very sensitive and very important topic, that is toxic relationship. हम सबको पता है कि toxic relations आजकल काफी common हो गए हैं, but sometimes the couple don't even realize that they are in a toxic relationship and they just continue to suffer. Or kabhi kabhi they know the truth about their relationship, but they just don't know how to get out of it. So, hi guys, this side Yashasvi, and we will be talking about toxic relationship with Adrija Chakrabarti. Adrija is a trauma-informed psychologist and a writer. So, hi Adrija, how are you? Hi, thanks for having me. मैं बहुत बढ़िया हूँ. I'm so happy that people will get to listen to a conversation like this. And considering my history of being in a toxic relationship, I feel like, it's good to talk about these things. It's important and it will help others and ourselves if we talk about it. इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है. That's great. That's great, Adrija. I'm really happy that people should know such topics because ये ऐसे sensitive topics होते हैं कि लोग बात करने से बहुत कतराते हैं. I have also seen some toxic relationships around me, or I was in one too. तो I can understand कि कितना important है इसके बारे में बात करना, especially for the teenage relationships, जहाँ पे they just don't know the depth and the sincerity of a relation. So I will like passing this over to you, Adrija. So tell me, Adrija, what made you choose this topic? I'm asking this question again, but I would like to know more about it. Okay. So ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी. प्रोफेशनली इसलिए बिकॉज my niche, like the kind of clients that I seek out and who reach out to me are people जिनके साथ abuse हुआ है, चाहे वो sexual violence हो या domestic violence, या फिर उनके साथ नहीं हुआ पर उनके मम्मी पापा के साथ होता था, तो they've grown up in that environment. So that's the kind of work I do professionally. So ये toxic relationship तो it's a common feature in my work. Personally, I'm very much interested in this topic क्योंकि ये मेरे जीवन का मकसद बन चुका है, ट्रॉमा को समझने का और उसके बारे में जो जानकारी मैं सीखती हूँ वो सबके साथ बांटने का. So, as a survivor of domestic violence, rape, and child abuse, I feel that it's important to talk about these things. So that's why I chose this topic. I'm so glad, Adrija, you are like talking this out openly. आप लोगों की help करना चाह रहे हो. You don't want people to suffer the way you suffered, and I think that's a one hell of a great step. I really want to clap you for that. Thank Uh, you. So, Adrija, let's start by knowing or by defining what is toxic relationship. Okay. इस चीज को समझने में मैंने काफी टाइम लगाया था, but no matter how you look at it, one way of simply defining a toxic relationship is जहाँ पे power dynamic है, जहाँ पे equality नहीं है in terms of decision making, control, influence. तो ये वाला definition parents को थोड़ा ग्रे एरिया में डाल देता है, बिकॉज एज अ पेरेंट यू डू हैव पावर, बट व्हाट यू डू विद दैट पावर, आप उसको अच्छे के लिए यूज करते हो या उस चीज का अब्यूज करते हो, दैट डिफाइंस वेदर योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड इज टॉक्सिक और नॉट. बट इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक, अगर हम अडल्ट रिलेशनशिप्स की बात करें तो टॉक्सिक वही है जहाँ पे पावर डायनामिक है. पावर डायनामिक को एक्सप्लेन करने के लिए आई जस्ट से कि आप खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते हो, आप खुद की तरह you can't be yourself because somebody has power over you, so you're constantly working from fear or obligation or guilt.
Yeah. बहुत सारा इमोशनल ब्लैकमेल जिसको बोलते हैं, वो होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में। So, Aditya, the way you were saying, जैसे आप बता रहे थे, एक पॉइंट बता रहे थे, emotional abuse, blackmailing, emotional blackmailing, and stuff like that, and those things are like constantly hitting my head, and like this happened, this happened, this happened, and it feels like ये किसी एक रिलेशन में नहीं होता है, अगर हम सिर्फ कपल्स की बात करें, बट समहाउ ये और रिलेशंस में होता है, चाहे वो पेरेंट्स के हों। आई डोंट हैव अ सिबलिंग, तो मैं एक सिबलिंग का रिलेशन नहीं बता सकती, बट पेरेंट्स में भी, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, आई हैव सीन दोस थिंग्स, एंड those were really traumatic sometime, like once upon a time. So Hadrija, how we can like identify, like how we can like ourselves know कि हम हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, बिकॉज कभी कभी लोगों को रियलाइज ही नहीं होता एंड दे जस्ट कंटिन्यू गोइंग थ्रू विद इट. सो हाउ डू वी रियलाइज कि हम हैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में? आई थिंक रियलाइज करने का जो एबिलिटी है वो डिफरेंट है। अगर आप बचपन से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से ही सराउंडेड हो, मतलब आपके मम्मी पापा के साथ, उन दोनों का एक दूसरे के साथ भी टॉक्सिक था, दोनों का आपके साथ भी टॉक्सिक था, अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी है, दूसरे फैमिली मेंबर्स भी है, उन सब, इफ यू ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ये नॉर्मल है, तो बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। पर अगर आपने रिलेटिवली हेल्दी रिलेशनशिप्स देखा है और आपको पता लग जाता है कि ये वैसा फील नहीं हो रहा है, तो इजियर हो जाता है। बट द गुड न्यूज इज, एज अडल्ट्स वी आर एबल टू लर्न द वार्निंग साइंस। तो बचपन में चाहे जो भी हुआ हो, अगर हमारे पास वो नॉलेज है कि क्या ढूंढना है, तो हम आज भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में है कि नहीं। तो वार्निंग साइंस में आई वुड से पहला है कि यू डोंट फील लाइक योरसेल्फ, यू डोंट फील लाइक यू आर हैप्पी और यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। तुम्हारे अंदर जो आवाज आती है ना, जो बोलती है, गाइड करती है तुम्हें, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम चाहकर भी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जो तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है। तो ये एक साइन होता है। दूसरा साइन होता है, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी है, चाहे वो पार्टनर, स्पाउस या पेरेंट, कॉलीग, कोई भी है जिससे तुम डरते हो, वो एक और साइन है। बिकॉज रिलेशनशिप बाय डेफिनेशन शुड बी, मतलब जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम तभी बन सकता है अगर आप उस रिलेशनशिप में सेफ फील करते हो, चाहे वो फिजिकली है, इमोशनली है, या कोई लोग आपको फाइनेंशियली भी अब्यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली तुम्हें डर है उनके बिहेवियर से, उनके रिएक्शन से, वो क्या करेंगे, तो तुम खुल के जी नहीं पाते हो, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग आई शुडंट डू दिस, नहीं तो ऐसा रिएक्शन आ जाएगा। वो तो अवॉइड करना है, उससे बेटर है कि खुद को इग्नोर करो। सो वो एक और वार्निंग साइन है। लो सेल्फ एस्टीम, इफ यू नो तुम कोई भी स्टेज में हो लाइफ के, एंड यू फील लाइक यू हैव रियली लो सेल्फ एस्टीम, मतलब तुम्हें लोग भी बोलते हैं ये, और तुमने खुद भी देखा है, इट्स लाइक रियलिटी चेक्स मिल चुके कि हाँ, मेरा सेल्फ एस्टीम, उसके तो धजिया उड़ चुके हैं। यूजुअली इफ दैट्स हैपनिंग, देयर्स समथिंग, अ ड्रेन इन योर लाइफ। कोई तो एक इंसान है आपके लाइफ में जो चूस रहा है आपकी सारी एनर्जी, ड्रेन कर रहा है आपको। सो दैट्स अनदर वार्निंग साइन। बाकी के आई थिंक एज वी प्रोग्रेस विद दिस कॉन्वर्सेशन निकलते रहेंगे बातचीत में। करेक्ट. एंड जैसे जैसे आप बोल रहे हो, एंड आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग इन माई हेड कि यार ऐसा ऐसा तो हुआ था, एंड आई थिंक मैं जब थी उस सिचुएशन, आई नेवर रियलाइज्ड दिस थिंग कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ. इसलिए एक पर्टिकुलर टर्म है, एंड आई नेवर रियलाइज दैट. ओके, ग्रेट.
सो लाइक आपने बताया कि एक तो हमारा पर्सन का होता है कि कपल्स का एक मेजर जो हम लोग बात मैक्सिमम करते हैं, कपल्स टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात होती है मैक्सिमम। बट जैसे कि अदर्स लाइक हमारे पेरेंट्स हो गए और हमारे अदर फैमिली मेंबर्स हो गए, आई वांट टू नो फर्स्ट कि हाउ टू डील विद देम। विल कम ऑन कपल्स वाला लेटर। हाउ टू डील विद पेरेंट्स एंड अदर important family members, the whom with you are living. And या ये डिस्टिंक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कपल के साथ हमेशा वो ऑप्शन तो रहता ही है कि कट ऑफ, ब्रेकअप। yeah. फैमिली मेंबर के साथ कभी वो ऑप्शन नहीं रहता। तुम चाह कर भी, लाइक इवन इफ यू बिकम estranged और तुम सालों साल बात नहीं करते हो, दे विल स्टिल हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर योर इमोशंस, ओवर योर डिसीजंस। तो वो डिस्टिंक्शन काफी इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि एस्केप नहीं है, देन यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू जस्ट एक्सेप्ट एंड लिव विद इट। तो इसके बारे में बात करने के लिए आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग पर्सनल। तो मेरे लाइफ में एक ऐसे ऐसे दो इंसान हैं जो जिनके साथ रिलेशनशिप मेरा काफी टॉक्सिक है, पर मैं कट ऑफ नहीं कर सकती हूँ। आई वुड लाइक टू गिव द एग्जांपल ऑफ माय हस्बैंड। अगर अगर हम सिर्फ एक कपल होते, बात अलग थी, बट वी हैव अ चाइल्ड टुगेदर। सो ये इंसान, जब तक मेरा बच्चा जिंदा है, ये इंसान मेरे लाइफ में रहेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को, लाइक आई डोंट वांट टू रॉब हिम ऑफ अ पेरेंट। तो जब ऐसे केसेस होते हैं ना कि लाइक देयर इज नो ऑप्शन बट टू लिव विद देम, द ओनली सेविंग ग्रेस इज हेल्दी बाउंड्रीज। आपको सीखना पड़ेगा बाउंड्रीज कैसे असर्ट करे, कैसे मेंटेन करे। बाउंड्रीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। लाइक एक तो फिजिकल बाउंड्री, आप चूज कर सकते हो कि मैं इस इंसान के साथ सेम घर में नहीं रहूंगी, कहीं और जाऊंगी। एक तो वो हो सकता है, या फिर अगर सेम घर में हो तो लिमिट योर इंटरेक्शन, वो एक फिजिकल बाउंड्री है। दूसरा है इमोशनल बाउंड्री, कि ये तो सुधरने नहीं वाले हैं, ये चेंज नहीं करने वाले हैं, तो मुझे ही सीखना पड़ेगा हाउ टू नॉट गेट सो अफेक्टेड बाय इट। तो माय इमोशनल बाउंड्री इज कि मैं, तुम जैसे मर्जी रिएक्ट कर रहे हो करो, लेकिन मैं अपने रिएक्शंस को चूज करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, सिर्फ रिएक्ट नहीं करूंगी। और वो बाय टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, टेकिंग केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, यू नो, नोइंग योर इमोशंस, उनको अपने क्या फील कर रहे हो उसको समझ रहे हो। जो भी थेरेपी में प्रोसेस होता है ना, ये सब अगर आप कर रहे हो, तो आपको उनके सामने कभी भी इमीडिएटली रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वो सुधरेंगे नहीं, लेकिन आपके खुद के बिहेवियर पे कंट्रोल आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कंट्रोल ही नहीं होता है, यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली इन सर्वाइवल मोड। तो इतना हेल्पलेस फील होता है ना कि कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई थिंक बाउंड्रीज रियली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। और तो क्या ही कर सकते हैं। या आई गेस वी कैन गो अहेड विद द कॉन्वर्सेशन। आई थिंक आ जाएंगे पॉइंट्स बात Yeah, करते करते। great. I think that's right. कि अभी कभी हमें छोड़ देना पड़ेगा उन्हें, हम उनको हर वक्त खींच के अपने साथ नहीं लेके चल सकते कि नहीं तुम हमारी तरह समझो, हमें समझो, हमारी बात को समझो। दैट डजंट वर्क आउट दैट वे। ये दो पॉइंट्स बोले, लाइक रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, डोंट रिएक्ट, जस्ट डू बी। सो हाउ टू बी डिस्टिंक्ट बिटवीन, अगर हम उनको अलग करें रिएक्ट को, तो क्या मतलब बनता है उसका? दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यशस्वी, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, वो यही है, उनको सिखाना कि आप, यू नो, आपको डिफरेंस पता चले कि मैं कौन से सिचुएशन में रिएक्ट कर रही हूँ और कौन से सिचुएशन में मैं अपना रिस्पॉन्स चूज कर रही हूँ। तो रिएक्ट में इट विल ऑलवेज बी अ वेरी इनवॉलेंटरी थिंग, मतलब आपने सोचा नहीं समझा नहीं, बस उस मोमेंट में जो जैसे नी जर्क रिएक्शन बोलते हैं ना, लाइक दैट हैपेंड।
एंड वेज ऑफ फाइंडिंग आउट कि ये चीज हो रहा है कि तुम नोटिस करो तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि अगर ये एक रिएक्शन है देन इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग हैपनिंग। कोई भी इंसान आपके सिचुएशन में ऐसे ही सोचता। सो a lot of the work that I do with my clients is explaining the biology कि तुम्हारे बॉडी में क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा लाइक आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सिचुएशन में किसी भी इंसान का ऐसा ही रिएक्शन आता। तो आप सिर्फ उस रिएक्शन को पहले समझ लो, सो यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न कि ओ दिस इज हैपनिंग अगेन। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ और मेरे कई क्लाइंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई अथॉरिटी पोजीशन में है ना, जैसे कोई कोई पेरेंट या कोई बॉस, कोई टीचर, वो अगर थोड़ा सा भी अकर मतलब स्ट्रिक्टली बोल दे या डांट दे तो रोना आ ही जाता है, वो कुछ छू जाता है अंदर, राइट? तो दैट्स आल्सो लाइक अ वेरी बायोलॉजिकल थिंग हैपनिंग। तुम अगर उसके वार्निंग साइन समझ लेते हो then you are able to stop it from happening. You are able to just take जो जो स्टिमुलस है, जो चीज हुआ आपके साथ और जो आपका रिएक्शन है जो आपने किया उसके बाद, उसके बीच में जो गैप है उसको आप बढ़ा सकते हो, थोड़े और सेकंड्स दे सकते हो। फिर वो गैप जब बढ़ जाता है then you can actually just calm yourself down and choose, am I going to do what my body is asking me to do, or can I tell my body to take a chill pill and let me think what I want to do? So the work that I do with my clients is mainly training them on understanding the language of the body, ताकि आप वार्निंग साइन समझ सको और उनको स्विच ऑफ भी कर सको। So that's what I think. Yeah. आई थिंक दैट्स ग्रेट। मतलब मैं जो यहाँ से समझ पा रही हूँ इज लाइक रुको, सुनो, रुको, सोचो, समझो एंड देन स्पीक। Yeah, जो बोलने में आसान है तो प्रैक्टिकली कैसे उसको यूज करें वो ट्रेनिंग है। Yeah. दैट्स अ ट्रेनिंग एंड आई थिंक उसके लिए बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा लाइक विल पावर चाहिए कि आप वो प्रैक्टिस कर सको। बिकॉज यूजुअली यही होता है, किसी ने हमें एक जवाब दिया, हमने उसके 4 जवाब दे दिए पलट के, एंड फिर बाद में लग रहा है यार ये क्या ही हुआ, और उससे कुछ नहीं, सिर्फ रेज और एंगर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, उधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, एंड देयर इज नो मीडियन पॉइंट हैपनिंग, कहीं से सुलह नहीं हो रही है। Oh yeah, correct. So I think that's a very good ways. I think initial baby steps to deal with your toxic relationships at home, जिनके साथ आप रह रहे हो. Second, I would definitely, that's the couples one, the people who are dating young, like basically teenagers. कभी कभी उन्हें भी नहीं पता होता है dealing with in the toxic relationship. So let's start with couples. Like, how do we identify as a couple? If I'm a teenager of 16 years and I'm in a relationship with someone who is a year younger, 2 years younger, or any kind of way, sorry, younger, older. And how to identify their dominance? आपकी आवाज कट रही थी, क्या क्या पूछा आपने? हाँ, तो आई वॉज आस्किंग अदरवाइज कि कभी कभी जैसे टीनेजर्स का क्या होता है ना, दे स्पेशली टू गर्ल्स, दे वो अक्सर अपने से 1-2 साल 3 साल बड़े लड़के को डेट करती है। इसमें क्या होता है, वो लड़का बड़ा होता है एंड दैट पर्सन बिकम्स डोमिनेटिंग। हाउ दोस गर्ल्स अंडरस्टैंड कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आई नीड टू गेट आउट। ओके, आई थिंक बार बार हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इट्स कमिंग बैक टू वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग्स जिसको बोलते हैं। अगर आप ये रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करने लग जाओगे तो आपको सब जगह दिखने लगेंगे। जितने भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है लाइफ में, दे ऑल स्टार्ट सडनली बीइंग विजिबल टू यू। तो वो रेड फ्लैग्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग इज फास्ट फीलिंग्स, मतलब बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया एंड झगड़ा होता है तो बहुत ही जल्दी नफरत हो जाती है कि कभी शक्ल नहीं देखनी है। मतलब इस तरह के जो
मतलब कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप में फीलिंग्स के लिए बहुत टाइम लगता है। लाइक फर्स्ट यू गेट टू नो ईच अदर, देन यू गेट अटैच्ड, फिर मतलब अलग अलग स्टेजेस हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपने एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आप आई लव यू तक पहुंच गए, दैट्स अनयूजुअल। सो आपको सोचना पड़ेगा कि ये सच में मेरे लाइफ पार्टनर मिल गए इसलिए इतना इंटेंस है, या फिर ये ड्रामा से भरा हुआ है इसलिए इतना इंटेंस है। So that's one sign. Intensity, I would say, volatility, बहुत जल्दी बदलाव. Another red flag would be um, वो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, like even if they are saying कि मैं तुम्हारे भले के लिए ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ, पर जब भी वो बात करते हैं आपको अपने बारे में बहुत बुरा फील होता है, like you feel so guilty, so ashamed कि तुमने ये चीज किया। तो वो जो शेम है वो हमेशा फील होता है, चाहे वो अच्छे से बोल रहे हैं या बुरे से बोल रहे हैं, लेकिन इनके आसपास जब हम होते हैं तो ऐसा फील होता है। सो वन टिप आई लाइक टू गिव टू teenagers or my clients is that notice how you feel when you are around this person versus when you are away from this person. Is it drastically different? So that's another red flag. पावर डायनामिक की बात तो मैंने की थी, लाइक बेसिकली या कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सोचते हो इनके बारे में, आप आपको उनके रिएक्शन से डर लगता है, वो तो एक था ही। बट अनदर रेड फ्लैग आई कैन थिंक ऑफ इज उनका बिहेवियर। वो आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या ये आपको उनसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज़ मेरे साथ यही हुआ था, लाइक आई मैरिड माय हस्बैंड आफ्टर 6 वीक्स ऑफ डेटिंग, सो दैट्स जस्ट 1 एंड अ हाफ मंथ्स। आई मेट द पर्सन एंड 1 एंड अ हाफ मंथ्स लेटर वी मैरिड, घर पे किसी को बताया भी नहीं, इस लेवल का हो गया है। सो उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोसेसेस हो रहे थे। मेरे पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसको मेरे अगेंस्ट यूज़ करना कि मेरे से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब मेरे से ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता, और किसी का प्यार लायक ही नहीं है तुम्हारे, सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट हूँ। If they make you feel like that, it's a huge red flag because in a healthy relationship, there are several people supporting each other. आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके जो सिबलिंग्स है, आपके फैमिली मेंबर्स है और उनके जितने भी सपोर्ट ग्रुप में लोग हैं, सबका एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप धीरे-धीरे बन रहा है, ब्लॉसम कर रहा है। अगर वो चीज़ नहीं है, इफ दिस पर्सन इज़ सो इंसिस्टिंग कि नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम और किसी की नहीं हो, तुम्हारे लाइफ में और कोई हो ही नहीं सकता, दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। देयर इज रियली गुड रिसोर्स ऑनलाइन जो जिससे मुझे ये सब सीखने को मिला, वेयर आई गॉट टू आइडेंटिफाई व्हाट्स रॉन्ग विद माय मैरिज। इट्स कॉल्ड वन लव फाउंडेशन। इट्स बिल्ट बाय दिस family of a young girl who got into a toxic relationship एक older male के साथ, और उसने मार डाला उसे, like he killed her. And even in today's news, when you hear things like the Delhi case, yeah, so all our parents are thinking about it, like we're all talking about it now, and यही red flags को अगर हम पहले आइडेंटिफाई कर दे तो इतने लेवल तक नहीं जाता। तो ये वन लव फाउंडेशन जो है वहां पे 10 signs of a healthy relationship, 10 signs of an unhealthy relationship, ये information ने it has changed my life, so I love sharing that resource with everyone. That's great. I think आपने बहुत सटीक बातें बोली हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये जो सफर कर रहे हो उनको शायद अंदाजा भी नहीं लग रहा होगा कि जो पर्सन क्लेम कर रहा है वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, एक्चुअली लाइफ में जहर घोल रहा है।
मुझे हम्म क्लोज वंस ब्लड रिलेशंस के साथ के खिलाफ भड़का रहा है, होता है। आई हैव आल्सो सफर्ड दैट। हम्म When I was a teenager, I was in a relationship, and that time that guy used to do this. I didn't had that much great relationship with my like parental side. हम्म Father था तो मैं अब होता है ना, when you are very you are naive, you are a teenager, आपको कहीं से भी इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आप उसको सब चीजें बोल देते हो जाके सब कुछ। एंड हम्म ही दैट एंड नहीं तुम्हारे फादर तो ऐसे हैं, तुम्हारे चाचा तो ऐसे, एंड देयर इज दैट दोज एज लाख मेरे रिलेशनशिप नहीं ठीक हो मेरे फादर के साथ या अंकल के साथ जो भी है, बट you should not use it as a stuff वेपन, एज अ weapon, वेपन। as a weapon. Yeah, I think that's very right. So like ठीक है, अब मोस्टली कुछ लोगों को अंदाजा लग गया कि भाई ये मेरा रिलेशनशिप नहीं ठीक चल रहा है। हम्म इवन ये तो चलो एक हिडन पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी वो वॉयलेंट भी हो जाता है रिलेशनशिप, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड was dating this guy for 6 years, and he used to beat her. Even हम्म though that relationship continued for next 3 years, like रिलेशनशिप स्टार्ट होने के 1-2 साल बाद दैट स्टफ स्टार्टेड, एंड वो फिर अगले 3-4 साल चला, दैट आई थिंक वो वहीं रुक जाना चाहिए था। बट बिकॉज हम्म सम रीजन की वो उससे इतनी जुड़ी हुई है, आदत है, अटैचमेंट है, क्या है आई डोंट नो, बट हम्म he could not get out of it until and unless वो चीजें बिल्कुल worst condition में आ गई। So how do we get out even after knowing these red flags? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले बोला था ना, इट ऑल कम्स डाउन टू द बायोलॉजी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई आपके साथ इतना मिसबिहेव कर रहा है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें उनको रखना है अपने साथ। And the answer is usually that you can't help it. There's just some bodily attraction you feel for this person कि वो जितने भी आपको mistreat करे, you just cannot detach. मतलब they hold such an important place in your life that you can't see a life without them anymore. तो वो जो feeling आती है, that's also completely biological happening. There's a term for it also. इसको बोलते हैं trauma bonding. तो क्या हो रहा होता है कि कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप 100% बैड नहीं होता है, 50% बैड होता है, 50% गुड होता है, क्योंकि अगर सारे मोमेंट्स खराब होते हैं तो आप कब के छोड़ चुके होते हैं उसे। आप टिकते इसलिए हो क्योंकि गुड मोमेंट्स भी होते हैं। तो थोड़ा गैम्बलिंग जैसा हो जाता है, मतलब एकदम रैंडम है, आपको पता नहीं कि कल गुड मोमेंट होगा या बैड मोमेंट होगा, तो इक्वल चांसेस है तो ट्राई करते हैं, तो वो होता है। And because of that, there are really sad emotions in a bad phase and really happy emotions in a good phase. जब सब सही चल रहा है तो एकदम एक्सट्रीम प्यार फील होता है, और जब सब बुरा फील हो रहा है एकदम एक्सट्रीम शेम फील होता है। दोनों टाइम पे आपके बॉडी में अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं। When you are sad, your body is secreting stress hormones, और जब आप खुश होते हो आपके बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। तो ये दोनों जो हॉर्मोन्स का ऐसा चल रहा है ना, यू गेट एडिक्टेड टू इट। इट्स लाइक अ कॉकटेल ऑफ हॉर्मोन्स एंड यू आर ड्रंक ऑन इट, यू आर एडिक्टेड टू इट। सो इसीलिए वो एकदम फिल्मी मैजिकल फील होता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा सोलमेट है। इवन दो वो मुझे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह नहीं रखता है, बट स्टिल। या अभी तक हमने मतलब एक फीमेल पर्सपेक्टिव से बात करी है, मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन इन कपल्स, की फीमेल्स को कैसा एक होता है, गर्लफ्रेंड या वाइफ का कैसा रहता है। नाउ आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ मेल। मेल्स के साथ क्या सिमिलर रेड फ्लैग्स होते हैं या कुछ डिफरेंट होता है, या क्या, लाइक व्हाट आर द डिफरेंसेस फ्रॉम द बोथ साइड? बस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जेंडर का तो कोई रोल है ही नहीं। मतलब आई सपोज मेल्स को ज्यादा अलाउ करता है सोसाइटी टॉक्सिक होना,
बट ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स के साथ टॉक्सिक मतलब बिहेवियर नहीं हो सकते। कितने मदर्स हैं, कितने वाइव्स हैं, कितने डॉटर्स हैं जो दे आर टॉक्सिक टू द पीपल इन देयर लाइफ, टू द मेन इन देयर लाइफ। डिफरेंस ये है, पावर जनरली मेन में ज्यादा होता है देन women बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। सो वो उनका अब्यूज करने का तरीका डिफरेंट होता है। Yeah. When it's a man, there's the whole violence angle, physically larger men, more strength in their body, and rape. Like, if nothing else, they can rape you and violate you that way. Um, तो क्योंकि वो वायलेंस वाला फिजिकल वाला नहीं होता है विमेन में, इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल वॉरफेयर। उनके हथियार इमोशनल टाइप के होते हैं। तो जो मैंने पहले बोला था इमोशनल ब्लैकमेल, उसमें 3 फीलिंग्स होती हैं: फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट, फॉग। आपको अगर किसी पे कंट्रोल लाना है तो या तो आप उनको डरा सकते हो, उनको गिल्टी फील करा सकते हो, या फिर उनको ऐसे बोल सकते कि ठीक है तो मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है तो तुम मुझे उतना प्यार नहीं करते हो, लाइक यू मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, वो वाला वेपन। सो तरीके में फर्क होता है, बट अब्यूज इज अब्यूज। It's correct, absolutely right. So, like we talk about कि what is the अगर हमने पूरा realize कर लिया this relationship is definitely not for me, but पहला step होता है how to take that first step. See, as a survivor of domestic violence, I feel like काश मुझे किसी ने ये बताया होता तो मैं कितनी जल्दी निकल चुकी होती और कितने स्मूथली निकल चुकी होती। और वो एडवाइस यही है कि डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जहाँ पे आप नोट कर रहे हो कि आज ये हुआ, आज ये हुआ। क्योंकि यूजुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप में पीपल विल गैसलाइट यू। गैसलाइट मतलब वो आपको इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि आप खुद की रियलिटी डाउट करने लगोगे। आप सोचोगे पर मुझे तो लगा ऐसा हुआ था, लेकिन ये तो साफ बोल रहा है, इनकार कर रहे कि ये तो हुआ ही नहीं था, तो शायद नहीं हुआ था। एंड वो इतनी बार होता है कि तुम्हें खुद के किसी भी डिसीजन पे ट्रस्ट ही नहीं होता है। सो इफ यू डॉक्यूमेंट, यू हैव प्रूफ, यू हैव एविडेंस कि नहीं, मेरा सच ही सच है, ये झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। सो दैट्स द और उससे एक लीगल एडवांटेज भी आ जाता है that if you finally do leave the person and if you were married at some point, or there's any legal thing, you have like some kind of documentation कि आपके साथ क्या हो रहा था। मेरे साथ जो वायलेंस हुआ वो फर्स्ट ईयर में ही शुरू हो चुका था। I was with him for 2.5 years, but only at the end of the second year did I start documenting. अगर उससे पहले मैंने सोचा होता, it would have been so smooth, it would have been so much easier, I could have been out much sooner. So that is the first step, I think. Another way to document is to talk to people about it. Usually जो abuser है, they will try to make sure कि आप इस relationship के बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकते हो। जैसे मेरे husband ने मेरे को convince किया था कि when we got married, तो हमने you make vows. So we had made a vow based on something the Pandit said कि हमारे बीच में जो है वो सिर्फ हमारे बीच में है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे। अब इसमें उसने मेरे को रेप कर दिया और मैं उसी दिन अपने भाई को बता भी नहीं पाई क्योंकि वो तो हमारे बीच में है ना। So we have to tell other people in our life कि भाई ये हो रहा है। That's another step. अब ये दोनों steps के बाद सबसे मुश्किल step ये है कि वो जब बोले the people who you are talking to, this is bad for you, get out, and you keep saying कि नहीं, I'll make it work, and then you start losing those people in your life. वहां पे सबसे difficult step होता है to choose
the people who've always been in your life and not to choose this person who just entered. अभी तो आया था, अभी इतना सारा प्यार हो गया है, लेकिन जो माँ है, जो जो पापा है, जो इतने टाइम से पुराने फ्रेंड्स है, ट्रस्ट देम टू नो व्हाट्स गुड फॉर यू मोर देन दिस वन पार्टनर. Yeah, that's huge, and that's, I hope those who ever like listening this thing or watching this thing, your steps low, because this is really important. If you want your life stress-free, happy, peaceful, at least normal, you really need to follow these steps. It's very, very important. Yeah, I forgot my next question. Yeah. So I guess manipulation has a big role in being toxic. Yeah. Yeah, you just make the person, भाई तुम तो गलती हो, तुम तो whatever you're saying, you are just wrong. खुद वही है ना, खुद चोरी करके चोरी का इल्जाम सामने वाले पे डाल. Yeah. Absolutely that way. अच्छा, is it possible कि a toxic relation can convert into a better relation? Is it possible? Okay, I will confidently say it is possible, but it is not easy. It's not easy, yeah. क्योंकि सिर्फ अगर आपने तय कर लिया है कि नहीं मैं इसको हेल्दी करके रहूंगी, that's not gonna cut it. Yeah. Both people have to have a difficult conversation where they agree कि ठीक है हम दोनों एकदम opposite सोचते हैं, पर हमको हेल्दी भी होना है. तो अगर दोनों साइड से इंटेंशन है, इट इज पॉसिबल. Yeah. अगर सिर्फ आपने तय करके रखा है कि नहीं आई विल कन्विंस दिस पर्सन, लेट्स मेक इट हेल्दी, मैं इसको मना कर ही रहूंगी, यू आर फूलिंग योरसेल्फ. Correct. Correct. Yeah. Definitely. भैया ना दोनों हाथ से ताली बजती है. Yeah. So, I have also seen some kind of relationship which is not exactly toxic, but होता है ना, you just lost that touch. एक किसी अपने ही काम में लग गया, like you have married or you came into the relationship with full of energy, 1-2 साल बहुत बढ़िया चला, there is no kind of abuse involved, but धीरे धीरे just get cutting off, अब cut off होने लगता है अपने आप. I think, is it possible or not? Yeah, definitely. I think आपके लाइफ में ना लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे. इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप किन लोगों को रखना चाहते हो, जाने नहीं देना चाहते हो, उसके लिए आपको सोचना है और उसके लिए काम करना है. So if you and your partner are getting disconnected, अभी ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, मतलब जिससे मैंने शादी की थी ये वो इंसान नहीं है, ये कोई और ही बन गया है. तो at that point the only thing you can do is communicate. कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है. अगर आपने कम्युनिकेट किया और सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे तो या इट्स पॉसिबल टू break up, get divorced or something. But if you are having conversations और उससे कुछ फर्क पड़ रहा है तो डेफिनेटली मतलब स्कोप है. तो आपका सिचुएशन वो स्कोप वाला है या सेपरेशन वाला है, वो आप गैस नहीं कर सकते हो. You have to talk to the other person about it. So one way of making sure it's not happening to you and your partner is to have conversations like this regularly. अगर आप हर महीने मेरे भैया और भाभी
काफी कूल है, उन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। वो हर संडे एक डेमोक्रेसी मीटिंग करते हैं जहाँ पे यू आर अलाउड टू से वॉट एवर यू वॉन्ट, आस्क फॉर वॉट एवर यू नीड, कोई जजमेंट नहीं है। हम चाहे जो भी फील करे, वील स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा जब तक दोनों खुश नहीं हो जाते। That's तो या इट्स वेरी इंस्पायरिंग। इस टाइप की चीजें, लाइक कम्युनिकेशन इज द ओनली आंसर टू अंडरस्टैंड किया क्या जाए उसके बारे में। yeah, correct. And many times लोग सोचते हैं कि बात नहीं करो बेहतर है, वो हम्म बेहतर है, ठीक है। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपको इतना पाइल अप कर देता है कि एक दिन आप हट जाते हो एंड या दैट, प्रेशर कुकर मोमेंट मैं उसको बोलती हूँ। और वो फटना इतना ड्रास्टिक हो जाता है कि आप क्या करो, आपको पता ही नहीं चलेगा। इफ यू स्लिटिंग योर रिस्ट, maybe हम्म your head in the wall or doing any हम्म crying out loud, anything can happen. And या जब हो जाता है, then you get into that guilt, I guess, that should not happen. And for that, चाहे कितनी भी difficult conversation हो, we need to do that. या I think that अगेन वही एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों को उतना ही इंटेंशन होना चाहिए कि इसके बारे में अगर बात करें तो हेल्दी तरीके से बात करें, कॉन्वर्सेशन को बहाना ना बनाए फॉर मोर तू मैं। yeah, correct. Be a gentleman and a gentlewoman and then talk. या या Yeah. I think like कभी कभी होता है कि हम जैसे यू वांट टू मे से मेनी थिंग्स बट समहाउ आपका बातें यहाँ पे आके रुक जाती हैं। या सो How to make that हम्म happen? बातें कैसे निकालें? हम्म सो ये जो फीलिंग होता है ना, जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है कि बोलना है लेकिन निकल नहीं रहा है, हम्म। कुछ करना है पर हाथ नहीं हिल रहे, हिल नहीं पा रहे हैं, हटना है हट नहीं पा रहे हैं। um this is also again a very biological thing happening. अगर आपको अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आप अपने पूरे दिमाग से फंक्शन नहीं कर रहे हो, आप एक बहुत ही लिमिटेड पार्ट से फंक्शन कर रहे हो। ये जो चीज होता है इसको हम टेक्निकल टर्म्स में फ्रीज बोलते हैं। Yeah. फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के बारे में तो सबने सुना है कि हाँ, कोई अगर तुम्हें अटैक कर रहा है या तो तुम उससे लड़ सकते हो या तुम उससे दूर जा सकते हो, ये तुम्हारा बॉडी वायर्ड है ऐसा रिएक्शन करने के लिए। फ्रीज के बारे में इतना लोगों ने नहीं सुना है, इसलिए उस टाइम पे उनको पता ही नहीं लगता कि ये फ्रीज हो रहा है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ शेम इन दैट। I want to stop this situation, but I'm unable to. Why? I must be weak. I must be dash, dash, dash. All these labels come. But you have no control over it. You're functioning from like a very limited part of your brain because that's what happens to any human body in a situation of extreme stress. Basically, fight and flight are an option as long as you think कि मैं कुछ कर सकती हूँ इसके बारे में। If it's a situation that is repeated so many times, आपके लाइफ में इतनी बार हो चुका है कि आपने फाइट ट्राई कर लिया, आपने फ्लाइट ट्राई कर लिया, आपने इतने सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए, लेकिन ये सिचुएशन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो that the brain switches into I can't mode. I can't do anything about it, and in that mode you freeze और यू फॉनिंग होता है हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है बस कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो, तुम जो चाहते हो मैं कर लेती हूँ। सो उस टाइम पे वहां से निकलना भी बायोलॉजिकल सोल्यूशन होगा। विल पावर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली थिंग यू कैन डू टू स्विच ऑफ दैट थिंग इज अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो मेरा काम क्लाइंट्स को ट्रेन करना होता है टू रिलैक्स योर बॉडी, टू बी माइंडफुल, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, ताकि तुम बॉडी को बोल सकते हो आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। इट्स नॉट एन आई कांट, आई मे नॉट बी एबल टू चेंज ये इंसान क्या कर रहा है, बट आई डेफिनेटली कैन चेंज मैं कैसे रिएक्ट करूं, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, एंड वो बॉडी में है।
Yeah, correct. So, now that we're talking about this is something that I always wanted to just put out there in the world. तो वो मैं बोल ही देती हूँ. Like कई बार मेरे क्लाइंट से मैंने सुने, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा होता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो, like you're just frozen, you're not able to push the person away or even say no or scream, you're just तुम जम गए हो. उस टाइम पे तुम्हारी गलती नहीं थी. अपने आप को ये बोलना बंद करो कि तुम्हारी गलती थी, कि तुमने कुछ किया नहीं. It was an extremely involuntary biological thing happening to you, जो आपके सिचुएशन में किसी भी इंसान के साथ होता. So just wanted to put that out there. That's really important for people out there to know this, because लोग नहीं, someone is there to blame. किसी को blame तो करना, चाहे वो खुद को करो. इस एक्शन का जिम्मेदार कौन? मैं. I think मैं नहीं होना चाहिए. That's right. And sometimes even you tell this to other people कि भाई मेरे साथ ये हुआ, तुमने उस समय क्यों नहीं बोला मेरे को? Why didn't you said anything that time? Yeah. You're just so much scared. You cannot do anything about that time. Yeah. लोग फिर लगता है यार, फिर मैंने यार सच में मुझे कुछ करना चाहिए था. Why I didn't did anything. So I think that's the answer. That's everything is biological happening inside your body. That's Understand it so you can control it. Yeah, understand it and control it. Yeah, correct. That's really huge. I think many people will find it helpful. बहुत जरूरी है लोगों को ये पता होना कि it's not their fault. Yeah. Yeah, correct. So, I would like to ask one last question. Okay. There is, in some kind of relationship, when you seek something from your partner, आप अपने पार्टनर से affection चाह रहे हो, importance चाह रहे हो, attention चाह रहे हो, but somehow you're not getting that time. And उसी समय आपकी लाइफ में कोई और आता है, they start giving you that kind of genuine attention and love, that affection you're seeking for. Even if it is open ki bhai, I'm in a relationship and still that person is giving. Is that, how does that take place? Like, is it called cheating or is it just what? Because जब सामने वाले को पता चलता है, the other partner knows, they just like, you cheated on me. Is it actually cheating or what it is? What we call it? I think ये काफी subjective concept है. मतलब आप जो इसके बारे में सोचो वो आपका सच है. कोई और आपको नहीं बता सकता कि आप cheat कर रहे थे या आप क्या कर रहे थे. Like, it depends on what are the values that you hold close to your heart. If honesty is something that you hold close to your heart, then any situation where you have to lie to the person you say you love, that would be cheating. That would be going against your own. आप खुद जिन चीजों में विश्वास करते हो, आप उसके against जा रहे हो. So then yes, it is cheating. Basically मैं क्या बोल रही हूँ कि you get to decide what is cheating for you. आपके लाइफ में क्या values हैं. अगर आपके values इसको normal समझते हैं, then you have the right to call it normal. No one can judge you. कोई यहाँ पे जज नहीं बैठा है. आप खुद ही डिसाइड करो आपको अपने बारे में क्या फील करना है. That's my response, my take on that. I think that's absolutely right, because हम किसी की लाइफ में आके बता ही नहीं सकते कि वो क्या फील कर रहा है. And what kind of stuff the person wants. That totally depends upon their own. तो फिर यहाँ पे बात I think choices की आ जाती है, I guess. How you choose and what you choose. Yeah. Yeah, correct. I think it was so lovely, and I'm still having so many questions. I think for one and another hour, like so the clock is ticking up. Yeah.
I would just want to ask, like, what that 2 things you want to tell to the world that they should know about their relationship, whether it is a romantic relationship or a relationship with your family and friends. That 2 things that important that they should know. Hmm. I think one question you can ask yourself is this relationship adding value to my life? मेरे जिंदगी में क्या ये पॉजिटिव चीजें ला रहा है ये रिलेशनशिप, और इज इट टेकिंग अवे वैल्यू, या मेरे लाइफ में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो छीन रहा है ये रिलेशनशिप. So only keep the relationships that add value to your life. Limit the ones that take away value. And second thing would be, if you're confused about anything, कि ये relationship रखूं ना रखूं, मुझे life में क्या करना चाहिए, just focus on your body, like learning आपके body के क्या needs हैं और वो needs meet करना, और आपके खुद के साथ क्या रिलेशनशिप है. Am I being kind to myself? Am I showing myself compassion? बॉडी का ध्यान रखो, मन का ध्यान रखो, अपने आप आंसर आ जाता है. इस पर्सन के साथ और एंगेज करना चाहिए या बाय बाय बोलना चाहिए. Wow, really wow, it was so great. I think बहुत हेल्पफुल होगा ये 2 values, these 2 answers, these 2 facts, whatever we call it. It will help people a lot अगर वो अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं ये चीज in respect to their relations. I think that would be. So Adrija, it was a great talking to you. बहुत मजा आया, सीखा, बहुत कुछ समझा. Okay, that's great. I think we should definitely record another episode where we can more into depth and more like on a specific part of relationships. Yeah. It was great talking to you, Adrija. Thank you so much. Thank you so much for having me. I really enjoyed this conversation. Thank you. Me too. Bye-bye. Take care. Bye.